Hello, my dear students. Welcome back to my YouTube channel, Anshika Ki Pathshala. In the last video, I taught three phases of sexual reproduction, that is, juvenile phase, reproduction, and old stage. And today, I'm going to teach you events in sexual reproduction, which is divided into three parts, that is, fertilization, fertilization एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन. वन बाय वन मैं तीनों फेजेस को एक्सप्लेन करूंगी, तीनों इवेंट्स को. ओके तो हम पहले चलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पे. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर. प्री फर्टिलाइजेशन वो फेज है जहाँ पे जो भी चीज़ें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन से पहले हो रही हैं उन चीज़ों को हम प्री फर्टिलाइजेशन में इंक्लूड करेंगे. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इंक्लूड ऑल द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रायर टू द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. Gametogenesis. Gametogenesis refers to the process of information of the two types of gametes, that is, male and female. Gametes are haploid cells. In some algae, the two gametes are so similar in appearance that it is not possible to categorize them into male and female gametes. They are hence called homogametes or isogametes. कुछ मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि सिमिलर दिखते हैं. तो ऐसे गैमेट्स को हम होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स कहते हैं. यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम भी बनाया है. इट इज़ ऑल्सो गिवन इन 12th NCERT बुक. ये आइसोगैमेट है एंड एल्गा का, क्लैडोफोरा का. ठीक है, दोनों मेल और फीमेल गैमेट जो हैं वो सिमिलर दिख रहे हैं, इसलिए इन्हें हम कहेंगे आइसोगैमेट और होमोगैमेट. और जब भी कोई गैमीट मेल और फीमेल सिमिलर ना हो तो वो हेट्रोगैमेट्स होते हैं. जैसे कि होमोसैपियन में मेल और फीमेल गैमेट जो है वो एकदम डिफरेंट दिखता है, तो उसे हम कहते हैं हेट्रोगैमेट. In majority of sexually reproducing organism, that gamete produced are of two morphologically distinct type, that is heterogametes. In such organisms, the male gamete is called the anthrozoid or sperm, and the female gamete is called egg or ovum. जो हेट्रोगैमीट्स होते हैं उसमें जो मेल गैमीट है उसे हम कहते हैं एंथ्रोजॉइड और स्पर्म, और जो फीमेल गैमीट होगा उसे हम एग और ओवम कहेंगे. हियर इज द डायग्राम ऑफ होमोसैपियन गैमीट. दिस इज अ ओवम, फीमेल एग, एंड दिस इज अ डायग्राम ऑफ स्पर्म which is also known as anthrozoid. Sexuality in organisms. Sexual reproduction in organism generally involves the fusion of gametes from two different individuals, but this is not always true. In plants, plants may have both male and female reproductive structures in the same plants, that is bisexual, or on different plants, then it is unisexual. अगर कोई प्लांट ऐसा है जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो एक ही प्लांट पे है तो हम उसे कहेंगे बाइसेक्सुअल. और अगर कोई ऐसा प्लांट है जिसका मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो अलग अलग उस पे है, डिफरेंट फ्लावर पे है या डिफरेंट प्लांट पे है, तो उसे हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल. In several fungi and plants, terms such as homothallic and monoecious are used to denote the bisexual condition, and heterothallic and dioecious are the term used to describe unisexual condition. In flowering plants, the unisexual male flower is staminate, that is bearing stamens, while the female is pistillate or bearing pistils. Excuse me. जब कोई फ्लावरिंग प्लांट है जिसमें जो फ्लावर है वो स्टेमन्स हो उसमें, ठीक है,
तो हम उसे कहेंगे स्टेमिनेट। स्टेमिनेट तब कहेंगे जब उसमें स्टेमेंस हो, क्या प्रेजेंट हो, स्टेमेंस हो। और कोई फीमेल पार्ट अगर उसमें है जिसमें पिस्टल्स हो और बियरिंग पिस्टल्स हो तो उसे हम कहेंगे पिस्टुलेट। In some flowering plants, both male and female flowers may be present on the same individual, that is monoecious, or on the separate individuals, that is dioecious. Some examples of monoecious plants are cucurbits and coconut, and of dioecious plants are papaya and date palm. In animals, unisexual, an organisms that has only one type of reproductive organ, either male or female, with male and female individuals being separate. कोई यूनिसेक्सुअल हम तब कहेंगे एनिमल्स में जब मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग बॉडी में हो, ऑर्गन्स एक ही उसमें ना हो, तब उन्हें हम कहेंगे कि वो यूनिसेक्सुअल है। एग्जाम्पल है ह्यूमन। Bisexual, an organism that has both male and female reproductive organs are present within a single organism. They are also known as hermaphrodite. बाइसेक्सुअल एनिमल्स में तब होते हैं जैसे कि अर्थवॉर्म, हाँ, मेल और फीमेल जो है वो दोनों जो है वो एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो तो हम उसे बाइसेक्सुअल कहते हैं और उन्हें हम हर्माफ्रोडाइट के नाम से भी जानते हैं। सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट इन ऑल heterogamitic species are of two types, namely male and female. Gametes are haploid, though the parent plant body from which they arise may be either haploid or diploid. Here is the important fact. Haploid, N cell, okay, contains one complete set of chromosome like sperm and egg cell, while diploid जो कि 2n है, मतलब उसको आप जो भी नंबर ऑफ सेल है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। Cell contains two complete set. In humans, haploid cells have 23 chromosome. N is equal to 23, ठीक है, सिंगल काउंट हो रहा है। Whereas diploid cells have 46 chromosome. मैंने कहा ना अभी कि n सेल को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो हमारा बन जाएगा डिप्लॉयड सेल, दैट इज 46। हम 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 आंसर आ जाएगा और फिर वो डिप्लॉयड सेल है। Diploid cells make up the body's somatic tissues and are produced through mitosis, while haploid cells are crucial for sexual reproduction and are produced through meiosis. At the end of meiosis, only one set of chromosome get incorporated in each gamete. Gamete transfer. जब गैमीट ट्रांसफ़र होता है तो हमें किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। अगर वाटर इंटरनल हो रहा है कोई चीज़ तो हम वाटर को मीडियम बनाते हैं। सपोज़ पॉलन ग्रेन जो है वो उसे फीमेल ऑर्गन से रिप्रोड्यूस करना है, गैमीट को मीटअप करना है, ट्रांसफ़र करना है, तो हम मीडियम क्या लेते हैं? मीडियम यही हो सकता है, विंड हो गया, एयर हो, विंड है, वाटर है और एनिमल है, इन्हीं सब से ट्रांसफर होगा, ठीक है। देयर इज अ नीड फॉर अ मीडियम थ्रू विच द मेल गैमेट मूव्स। इन सेवरल सिंपल प्लांट्स लाइक एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइट्स, water is the medium through which this gamete transfer takes place. A large number of male gametes, however, fail to reach the female gametes. बहुत ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो मेल गैमीट है वो फेल हो जाते हैं फीमेल गैमीट तक पहुंचने के लिए, तो फ्यूजन हो ही नहीं पाता। To compensate this loss of male gametes during transport, the number of male gametes produced is several thousand times the number of female gametes produced. इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए जो मेल गैमेट होता है कंपैरिजन टू फीमेल गैमेट वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। In seed plants, pollen grains are the carriers of male gametes and ovules have the eggs.
Pollen grains produced in anther therefore have to be transferred to the stigma before it can leads to fertilization. In bisexual self-fertilizing plants, example P transfer of pollen grain to the stigma is relatively easy as anthers and stigma are located close to each other. Pollen grains soon after they are shed come to in contact with the stigma. But in cross pollination plant, including dioecious plants, a specialized event called pollination facilitates transfer of pollen grains to the stigma. जो हमारा सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसमें क्या होता है कि जो स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन है वो नज़दीक नज़दीक होते हैं, तो उनमें ईजिली जो पॉलिनेशन है वो हो जाता है. लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में ये प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि जो स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन है वो थोड़े दूर दूर होते हैं, तो उसके लिए कोई मीडियम की ज़रूरत होती है, जस्ट लाइक विंड. Pollen grains germinate on the stigma and the pollen tube carrying the male gametes reach the ovule and discharge male gametes near the egg. In dioecious animals, since male and female gametes are formed in different individuals, the organism must evolve a special mechanism for gamete transfer. Successful transfer and coming together of gametes is essential for the most critical event in sexual reproduction, the fertilization. अगर सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो रहा है गैमीट का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर फर्टिलाइजेशन. अगर गैमीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है अच्छे से तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस भी अच्छे से नहीं होगा. हमने ये अभी तक समझा प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज को, अब हम समझेंगे फर्टिलाइजेशन को. ठीक है. द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परहैप्स द फ्यूजन ऑफ gametes. This process is called syngamy, results in the formation of diploid zygote. The term fertilization is also often used for this process. फ्यूजन ऑफ गैमीट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसी को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन. ठीक है. और एक बात और, फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी जो है वो इंटरचेंजेबली एक दूसरे के लिए यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल, भाईजान ही सलमान खान है, सलमान खान ही सल्लू है, तो समझ लीजिए कि सल्लू ही भाईजान है और भाईजान ही सलमान खान है. अब चाहे आप कह लो कि सिनगैमी फर्टिलाइजेशन है और फर्टिलाइजेशन ही सिनगैमी है, दोनों इंटरचेंजेबली एक दूसरे के लिए यूज़ हो रहे हैं, एक ही चीज़ है. ठीक है. समझ लो कि पर्यायवाची है इसका. आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा. द टर्म सिनगैमी एंड फर्टिलाइजेशन आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड तो इंटरचेंजेबली. Parthenogenesis. In some organisms like rotifers, honeybees, and even some lizards and birds, turkey, the female gametes undergoes development to form new organism without fertilization. This phenomena is called parthenogenesis. कभी कभी कुछ organisms में जो fertilization है वो विदाउट मतलब जो गैम्यूट फ्यूजन है वो विदाउट लेट मी एक्सप्लेन इन डिफरेंट वे. न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉर्म हो जाए या डेवलप हो जाए विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस. दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ कि कुछ ऑर्गेनिज्म में जब यंग वन का या जो नया ऑर्गेनिज्म है ऑफ स्प्रिंग है उसका डेवलपमेंट हो जाए विदाउट फर्टिलाइजेशन, जब भी किसी का फर्टिलाइजेशन के बिना कोई भी ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाए तो उसे हम कहते हैं उस प्रोसेस को, उस फिनोमेना को पार्थेनोजेनेसिस. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन की दो कैटेगरीज हैं, दैट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल. अगर कोई फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो एक्सटर्नल हो रहा है, बाहर फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. और अगर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है
तो उसे हम कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स such as a majority of algae and fishes as well as amphibians, syngamy occurs in the external medium, water, that is outside the body of organism. This type of gametic fusion is called external fertilization. जो मैंने अभी समझाया कि अगर कोई भी फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है या ऑर्गेनिज्म बॉडी के बाहर हो रहा है किसी और मीडियम में, तो उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फिशेस और एम्फीबियंस में ऐसा होता है, समटाइम्स एल्गी में भी, कि जो फर्टिलाइजेशन है वो वाटर मीडियम लेते हैं वो लोग और वाटर में फर्टिलाइजेशन होता है। इस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। Organisms exhibiting external fertilization show great synchrony between the sexes and release a large number of gametes into the surrounding medium, water, हमने जो कि अभी बताया। In order to exchange chances of syngamy, this happens in the bony fishes and frogs where a large number of offspring are produced. A major disadvantage is that the offspring are extremely vulnerable to predators, threatening their survival up to adulthood. Internal fertilization, कोई भी फर्टिलाइजेशन जब फीमेल बॉडी के अंदर हो या ऑर्गेनिज्म के अंदर हो तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आइए समझते हैं इसे। इन मैनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स belonging to fungi, higher animals such as reptiles, birds, mammals, and in majority of plants, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm, and angiosperm, syngamy occurs inside the body of organisms. Hence, the process is called internal fertilization. In all these organisms, egg is formed inside the female body where they fuse with the male gametes. मैंने अभी समझाया कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है। इस प्रोसेस में जो मेल गैमीट है वो फीमेल बॉडी के अंदर ही फ्यूज होगा, ठीक है। In organisms exhibiting internal fertilization, the male gamete is motile and has to reach the egg in order to fuse with it. In these, even though the number of sperm produced is very large, there is significant reduction in the number of eggs produced. यहाँ तक हो गया फर्टिलाइजेशन स्टेज हमारा, फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब हम लास्ट स्टेज पे आते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, that is divided in two parts, that is zygote and embryogenesis. जो भी प्रोसेस या जो भी चीज़ें फर्टिलाइजेशन के बाद में हो रही हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसे हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। Events in sexual reproduction after the formation of zygote are called post-fertilization events. The zygote, formation of the diploid zygote, is universal in all sexually reproducing organisms. In organisms with external fertilization, zygote is formed in the external medium, usually water, whereas in those exhibiting internal fertilization, zygote is formed inside the body of organism. Zygote is the vital link that ensures continuity of species between organisms of one generation and the next. Every sexually reproducing organism, including human beings, begin life as a single cell, the zygote. जितने भी इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, जितने भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहे हैं वो पहले जो होता है उनकी जब लाइफ शुरू होती है तो वो सिंगल सेल में होते हैं और वो होता है zygote. Embryogenesis. Embryogenesis refers to the process of development of embryo from the zygote. Embryogenesis उस प्रोसेस को हम कहते हैं जब zygote एम्ब्रियो बनता है, इस पूरे प्रोसेस को हम embryogenesis कहते हैं. During the embryogenesis, zygote undergoes cell division, that is mitosis and cell differentiation. While the cell division increases the number of cells in the developing embryo,
Cell differentiation helps groups of cells to undergo certain modification to form specialized tissues and organs to form an organisms. अब जो फर्टिलाइजेशन है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, उसमें हमने समझ लिया जाइगोट और एम्ब्रियोजेनेसिस को. अब उसी बेसिस पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पे ही हमारा जो एनिमल है वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, दैट इज ओवीपैरस और विवीपैरस. जो ओवीपैरस होता है वो एग्स ले करते हैं, ठीक है, और जो विवीपैरस है वो यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं. Animals are categorized on the basis of whether the development of the zygote takes place outside the body of the female parent or inside, that is whether they lay unfertilized egg or give birth to young ones. जो एनिमल कैटेगरीज है वो इस बात पे डिवाइडेड है कि वो एग्स ले कर रहे हैं या वो यंग वन को प्रोड्यूस कर रहे हैं. Oviparous. In oviparous animals like reptile and birds, the fertilization eggs covered by hard calcareous shell are laid in a safe place in the environment. After a period of incubation, young ones hatch out. जो birds होती हैं, lizard हैं, जो भी ऐसे organisms हैं जो egg produce करते हैं, वो जो एग है उसके ऊपर एक शेल होती है, दैट इज कैलकेरियस शेल. और ये जो शेल है वो उनका जो ऑर्गेनिज्म है जो डेवलप हो रहा है उसके अंदर, उसको एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है ये शेल. और कुछ टाइम बाद में वो एग हैच हो जाता है और उसके बाद में उनका यंग वंस प्रोड्यूस होता है. इन विवीपैरस एनिमल्स, majority of mammals including human beings, the zygote develops into a young one inside the body of the female organism. After attaining a certain stage of growth, the young ones are delivered out of the body of the female organism. विवीपैरस में क्या होता है कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, सपोज अगर ह्यूमन है तो 9 months तक जो बेबी है वो मदर वॉर्म में पल रहा है, बढ़ रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है मेंटली फिजिकली, और फिर वो 9 months के बाद में डिलीवर आउट होता है. बिकॉज ऑफ अ प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन, द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इज ग्रेटर इन विवीपैरस. जो विवीपैरस है उनका जो सर्वाइवल चांस है वो ओवीपैरस के कंपैरिजन ज़्यादा होता है. इन प्लांट्स, in flowering plants, the zygote is formed inside the ovule. After fertilization, the sepals, petals and stamens of the flower within and fall off. The pistil, however, remains attached to the plant. The zygote develops into the embryo and the ovule develops into the seed. जो zygote है वो डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में, और जो ओव्यूल है वो सीड में डेवलप हो जाता है. द ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट विच डेवलप्स अ थिक वॉल कॉल्ड पेरिकार्प दैट इज प्रोटेक्टिव इन द फंक्शन. और जो ओवरी है वो डेवलप हो जाता है फ्रूट में, और उसके ऊपर एक थिक वॉल होती है जिसे हम कहते हैं पेरिकार्प, और वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है. आफ्टर डिस्पर्सल, सीड जर्मिनेशन अंडर फेवरेबल कंडीशंस टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स. यहाँ ये एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल ये एस जो है, एस को हमने सीड कहा है, ठीक है, और जो पी है वो पेरिकार्प है, ठीक है. पहले ऐसा था, सपोज ये पी का एग्जाम्पल है, पहले ये सीड है और ये जो इसकी आउटर वॉल दिख रही है वो पेरिकार्प है. फिर ये इस तरह से बना सेकेंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में ऐसे बना, और फोर्थ स्टेज में ऐसे बना. और ये फिगर है अ न्यू काइंड ऑफ फ्रूट शोइंग सीड्स. एस जो है वो सीड को शो कर रहा है एंड प्रोटेक्टिव पेरिकार्प जो है वो पी को. दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आज ये चैप्टर खत्म हो रहा है. नेक्स्ट चैप्टर हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे, ठीक है. तो इस चैप्टर में अगर आप लोगों को कुछ भी ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने क्वेश्चंस को डालें, कमेंट करें. Do like, share and subscribe. Thank you for watching.